Good morning, friends. Today is my fourth lecture for the revision of the audit. In today's session, we will discuss three questions. Question number 1, it is significance of the audit, that is merit या तो advantages of the audit. Question number 2, inherent limitation of the audit, and question number 3, it would be audit engagement letter. What is the scope of audit engagement? That we will discuss in today's session. So in today's session, we will cover 3 points. Now, let me start with the question number 1. It is significance of the audit or audit advantages, audit merits. If the question is asked for the significance of the audit or advantages of the audit or merits of the audit, then by and large answer will remain same. What are the advantages, what are the merits, positive parts of the auditing, why auditing is carried out, कौन कौन से स्टेक होल्डर को उसका बेनिफिट होता है, that we will discuss in detail. We will go with the stakeholder wise in the sense, the first important stakeholder who will get the benefit of the auditing. If the books of accounts are audited, who will be benefited? Number 1, all stakeholders of the organization. Stakeholder number 1, it's a shareholders will come to know if the audited financial statement comes to him, then definitely he will come to know whether I should continue, I should depart from the organization, meaning that I should continue to hold the equity shares or sell the equity shares or further buy the equity shares. So for decision making of investment in equity, it will be helpful to my existing shareholders. Existing shareholders can take the good decision whether to hold, to further buy or to sell the existing equity shares of the company. The first beneficiary is the shareholders of the company. They are the real owners of the organization. Number 2, it's a board of directors, top management. If audited financial statement is with them, so definitely they can evaluate the performance of the company, position of the company, and growth of the company. What is a track? In last 5 years, what is a track? In last 4 quarters, what is a track? Yes, we are going up or we are going down. So definitely they will be able to evaluate their own performances. Because financial statement is nothing, it is a mirror. It is a mirror of the all activities done in the organization, all activities carried out in the organization in the last year. When you prepare the profit and loss account and balance sheet, it shows everything. आप अगर कुछ भी अच्छा काम करते हो, अच्छा डिसीजन लेते हो, बेस्ट डिसीजन लेते हो या तो गलत डिसीजन लेते हो, उसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस पे. यस, हाँ. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इट विल बी हेल्पफुल, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी हेल्पफुल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to evaluate their own performances. So that is the second beneficiary. Now come to third one, the biggest stakeholder. It is the government, all government departments. It is an income tax department. Income tax department will evaluate the tax liability based on the audited financial statement. It is a GST department. GST department will also evaluate the GST liability based on the audited financial statement. And number 3 is it is ROC, Register of Companies. All companies have to submit their financial statement, audited financial statement, to ROC, Register of Company. It is also a government department for their monitoring and controlling purpose. Various government departments are using the audited financial statement. Many more are there. For example, it is Provident Fund, PF department, ESIC department, and for calculating the gratuity, bonus, many departments are using the audited financial statement. But at larger level, it is an income tax department and it is a GST department. They are using the audited financial statement. So the government is a third beneficiary. The fourth beneficiary is my creditors of the company. Creditors will evaluate my audited financial statement
and will judge my creditability. What is the creditability of my organization? My creditors will evaluate my financial statement, and based on that, they will decide whether to sell goods on credit basis, yes or no. If my financial position is good, my creditability is good, my track record is good, my financial performance is good, so definitely they will be ready to sell goods to me on credit basis. Otherwise, they will deny. Yes, credit पे goods sell करना है और कितनी credit पे goods sell करना है. That decision will be taken by the creditors based on my audited financial statement. Number next, it is my customer. My industrial customer will also use my audited financial statement. Why? For example, I am supplying to A Limited my industrial product. I am supplying my product to my industrial customer. In this case, what they will assess, they will ask for my audited financial statement. Why? Because whether I am able to supply continuously raw material to them, yes or no. Whether I am able to meet their order in time, yes or no. What is my capacity? The entire capacity, my financial position, my working capital position, everything will be judged from my financial statement. So my customer, my industrial customer will see my financial statement, will evaluate my financial statement and will decide whether I can supply the raw material in time, in quantity. जितना ऑर्डर दिया है, समझ लो मेरे प्लांट की कैपेसिटी है 100 टन की और वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला 10,000 टन का, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि माई टोटल टर्नओवर इज ₹1 करोड़ एंड आज मुझे ऑर्डर मिला 50 करोड़ का, तो आई एम नॉट एबल टू मीट दिस ऑर्डर रिक्वायरमेंट, उतना मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूँ. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी हेल्पफुल टू माई इंडस्ट्रियल कस्टमर एज वेल. देयर आफ्टर 6th beneficiary is my employees. My employees will also evaluate the company's position. Definitely, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, आप भी कंपनी का P&L एंड बैलेंस शीट देखना चाहोगे. बैलेंस शीट एंड P&L अगर प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, तो डेफिनेटली यू विल कंटिन्यू विद द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ग्रोथ डाउन जा रहा या तो कंपनी लॉस कर रही है, एवरी ईयर लॉस ही इनकट कर रही है, तो एम्प्लॉयज़ भी प्लान करेगा क्या कि मुझे कोई और अच्छी जगह पर अपॉर्चुनिटी मिले तो आई शुड चेंज माई जॉब. तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो यूज द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, हाँ. मेनी मोर स्टेक होल्डर्स आर देयर. इट इज़ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे विल ऑल्सो यूज माई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक जब मुझे लोन दे रही है, to evaluate the financial capabilities, to evaluate the creditabilities, to evaluate the financial position of the company, bank will use my audited financial statement. Based on the audited financial statement, bank will take the good decision whether to give the finance or not. So all financial institutions, my bank, will also use my audited financial statement. So this is the 9th stakeholder. 10th also 2-3 और stakeholder मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ. इट इज़ अ रिसर्चर. जो मार्केट में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो एडिटर्स है, काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो यूज़ माई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे विल प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट. यस, कि कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या है, ऐसा काफ़ी चैनल आती है जिसमें जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एनालिसिस होता रहा है. या at many more places also audited financial statements are used. For example, in court settlement. अगर किसी के पास से मैंने परचेस किया है मेरी कंपनी ने, तो दे आर माई क्रेडिटर्स, और बाद में कुछ पेमेंट में डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में, तो अगर कोर्ट में मैटर आती है, तो कोर्ट विल डेफिनेटली लाइक टू सी कि मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्रेडिटर में दिख रहा है, यस और नो. इफ यस, मीनिंग देयर बाय यू हैव एक्सेप्टेड एज अ क्रेडिटर्स, इवन ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड एज अ क्रेडिटर, तो इट इज योर लायबिलिटी, देन यू विल हैव टू मेक द पेमेंट. यस, तो कोर्ट विल कंसिडर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वन ऑफ द एविडेंस. At many more places also audit will be helpful. For example, it is a settlement between the partners.
बिटवीन द पार्टनर्स. अगर न्यू पार्टनर लाना है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, तभी भी गुडविल डिसाइड होती है. रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तभी भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है. तो एट दैट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड. अगर ऑडिटेड है तो दोनों जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, सभी पार्टनर को उस पर कंप्लीट रिलायंस रहेगा, कंप्लीट भरोसा रहेगा, एंड दे कैन डेफिनेटली रिलाई अपॉन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द existing partner, it will be helpful. It will be helpful. In case of the insurance claim, the next is insurance claim. अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ फायर हुआ है और उसका इंश्योरेंस क्लेम रखा आपने, स्टॉक फायर हो गया एंड इंश्योरेंस क्लेम के लिए आपने क्लेम पुटअप किया, इन दैट केस ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी विल रिलाई अपॉन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड स्टॉक स्टेटमेंट. तो ऑडिट विल बी हेल्पफुल इन दैट केस ऑल्सो, एंड बेस्ड ऑन दैट इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड योर इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, कितना आपको देना है. तो इन दीज केसेस ऑडिट विल बी हेल्पफुल. ओवर एंड अबव आई कैन से it is a moral control over employees. Audit provides the moral control over the employees. अगर ऑडिट रेगुलरली होता आपका, फॉर एग्जाम्पल मंथली बेसिस पे होता, क्वार्टरली बेसिस पे होता, ईयरली बेसिस पे होता, इन दैट केस कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करने का कोई चांस नहीं लेगा. क्यों? उसको पता है अगर 3 महीने के बाद ऑडिट आएगा या तो 1 साल के बाद ऑडिट आएगा तो पकड़ा जाएगा, इतने शॉर्ट टाइम में पकड़ा जाएगा, मेरा फ्रॉड है वो. और समझ लो 5 साल के बाद ऑडिट होता है तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा फ्रॉड के लिए. काफ़ी लोग ट्राई करेंगे क्योंकि 5 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है, 5 साल के बाद देखा जाएगा, ऐसा होता है. मगर ये क्वार्टरली, मंथली या तो एनुअली ऑडिट कर रहे हो आप, तो इट इज़ अ गुड कंट्रोल. इट इज़ अ मोरल कंट्रोल ओवर माई एम्प्लॉयज़. इट प्रोवाइड्स अ मोरल कंट्रोल ओवर माई एम्प्लॉयज़. यस. तो इन दिस वे इट विल बी हेल्पफुल. इट विल बी हेल्पफुल टू वेरियस स्टेक होल्डर्स. तो दिस 10-12 स्टेक होल्डर्स जो मैंने मेंशन किए हैं वो आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हो. यस. 10-12 सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो, उसको एडवांटेजेस बोल सकते हो, मेरिट्स बोल सकते हो, उसके बेनिफिशियरीज बोल सकते हो. आंसर विल रिमेन सेम. या नाउ विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट एडवांटेजेस हमने कवर कर लिए. इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. What is called inherent limitation? Inherent limitation means even though financial statements are audited, still there is a limitation. There may be the problem. What are the audit limitation? Audit का limitation क्या है कि audited है तो भी fraud रह जाएगा, possibility है. अगर audit आपने complete कर लिया, still possibilities are there कि inside कोई fraud error है. क्यों? क्योंकि ऑडिट की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, सर्टेन लिमिटेशंस आर देयर. तो वी कैनॉट कंप्लीटली डिलीवर द स्टेटमेंट कि वंस ऑडिट इज ओवर मीन्स नाउ देयर इज नो फ्रॉड, नो एरर. नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज अ रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. ऑडिट की खुद की लिमिटेशन है. लिमिटेशन नंबर 1, जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई करता है, हमने कल देखा था, जस्ट आई गिव यू द ब्रीफ ऑफ दैट. जब व्हेन ऑडिटर रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैंने ऑडिट की स्टेप पढ़ाया था, 8 स्टेप पढ़ाया था. अपॉइंटमेंट, थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, थर्ड वन वॉज ऑडिट एंगेजमेंट, फोर्थ वन वॉज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिफ्थ वन वॉज डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोग्राम, सिक्स्थ वन वॉज एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ledger scrutiny, 7th one was collection of working papers, and 8th one was it is a audit reporting, meaning the opinion. तो इसमें रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आ रहा. मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करके मैं उसका रिजल्ट कंक्लूड करता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग. तो मैंने बताया था उसके बेसिस पे मैं ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ. कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, तो मैंने क्या डिसाइड किया, रिस्क बहुत कम है, फ्रॉड होने का चांसेस कम है. तो मेरी एवरेज टीम, मैंने कम टाइम लगाया है वहाँ, कम टाइम अलॉट किया है, या मैंने थोड़ा सैम्पलिंग भी किया है. उसमें सैम्पलिंग मीन्स 70% चेक किया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो मुझे पता है कि वहाँ रिस्क कम है, तो मैंने 70% चेक किया. या अगर ऐसा जब आप सैम्पलिंग करते हो, 70% चेक किया, मीनिंग देयर बाय हो सकता है वो 30% में कोई फ्रॉड रह गया है. तो टेस्ट चेकिंग, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, दैट इज़ अ फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन. क्योंकि आपने 100% वेरीफाई नहीं किया, आपने सैम्पलिंग किया, मीनिंग देयर बाय इटसेल्फ
सैम्पलिंग इटसेल्फ इज द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. यस. एंड नंबर 2, आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई किया है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन डिवीजन ऑफ पावर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अमंग 3, 4, 5 पर्सन्स. मगर वो पांचों 5 लोग ने साथ में मिलकर घोटाला किया. दैट इज कोल्यूजन. तो मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग थी, 5 लोग में पावर डिवाइड हुआ था, तो मैंने उस पर भरोसा किया, रिलाई किया. मगर वो पांचों 5 लोग साथ में मिलकर फ्रॉड किया. यस. तो दैट इज कोल्यूजन. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग थी, मैंने भरोसा किया, मगर पांचों 5 लोग ने साथ में मिलकर ये भरोसा ब्रेक किया है, वायोलेट किया है. तो ऑडिटर को ये पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने तो उस पर रिलाई कर लिया. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑडिटर हैज़ रिलाइड अपॉन, उसने सैम्पलिंग किया, तो ये ऑडिटर की मिस्टेक हो गई. तो मीनिंग दैट अगर कोल्यूजन होता, तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटिंग. नंबर 3, ऑडिट में सभी एविडेंस कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं होते, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते, कुछ परस्यूएसिव इन नेचर है. इन द सेंस सभी एविडेंस फुल एंड फाइनल नहीं है, फाइनल एविडेंसेस. काफ़ी एविडेंसेस ऐसे हैं जो एविडेंसेस चेंज भी हो सकते हैं. आपको चेंज करके रखा है आपके सामने और आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है परफेक्ट है. यस. कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है. ऑडिटर के पास वो सीआईडी में आता है ना, दया एंड एससीपी, वो अपनी लैब होती है, लेबोरेटरी में एविडेंस चेक होता है. तो ऑडिटर के पास ऐसा कोई लेबोरेटरी नहीं है कि उसमें एविडेंस वेरीफाई होता है. नो, ऑल एविडेंसेस आर नॉट कंक्लूडिंग एविडेंस. मेजॉरिटी एविडेंसेस आर परसुएसिव इन नेचर, and that is the major limitation of the auditing. Yes. Number next, it is a professional skepticism. एक दिन मैंने आपको ये वर्ड यूज़ किया था जो इसमें लिखा पॉइंट नंबर 2 में, प्रोफेशनल skepticism, meaning that auditor is responsible for reasonable care. The auditor has to take reasonable care only, not 100% care. It is a reasonable care. Not 100% depth verification. It is a reasonable care. Auditor is responsible for reasonable care, not for 100% depth verification. No. अगर आप ऐसा मान रहे हो तो गलत है कि ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई इन डिटेल ईच एंड एवरी आइटम. तो 10 साल ऑडिट चलेगा. रिलायंस का ऑडिट 10 साल चलेगा और 10 साल के बाद ऑडिट रिपोर्ट आएगा, तब तो कोई स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर होगा नहीं होगा. या एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल. ऑडिट तो 6 महीने में खत्म करना है. दैट इज वाई सभी चीज़ चेक करनी है रीजनेबल, हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली. सभी चीज़ रीजनेबली वेरीफाई होगी. एंड जहाँ ऑडिटर को डाउट है वहाँ ही डेप्थ में वेरिफिकेशन होगा. अदरवाइज एग्जामिनेशन विल बी हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल. वर्टिकल एग्जामिनेशन कहाँ होती है? समझ लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1 to 100 पॉइंट है, इसमें से 5 जगह पे मुझे डाउट क्रिएट हुआ तो 5 जगह पे वर्टिकल एग्जामिनेशन होगा, डेप्थ में वेरिफिकेशन होगा. बाकी 95 थिंग्स है उसमें हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन होगा, रीजनेबल केयर लिया जाएगा. दैट इज कॉल्ड रीजनेबल केयर. तो मीनिंग दैट इसमें जहाँ जहाँ आपने रीजनेबल केयर लिया, हो सकता है काफ़ी जगह पे उसके डेप्थ में, रूट में फ्रॉड है, तो इससे फ्रॉड रह जाएगा क्योंकि आप तो रीजनेबल केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपने रीजनेबल केयर लिया है. या यस. तो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. एंड मटेरियलिटी, क्योंकि इन ऑडिटिंग मटेरियलिटी इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मीनिंग दैट ऑडिटर ऑलवेज फोकस ऑन द मटेरियलिटी. मटेरियलिटी मीन जो मटेरियल आइटम है, सिग्निफिकेंट आइटम है, उस पर ऑडिटर का फोकस ज़्यादा होता है. तो मैंने मटेरियल आइटम पे ज़्यादा फोकस किया. समझ लो मैंने 5 चीज़ फोकस की और 5 चीज़ में 90% एरिया कवर हो गया, तो ये 5 चीज़ मेरे लिए काफ़ी मटेरियल है, मैंने डिटेल में चेक किया. और 10% आइटम ऐसी थी जिसमें 1000 आइटम कवर है और इट इज़ इमटेरियल, फॉर एग्जाम्पल. यस. तो वो केसेस में मैंने उतना फोकस नहीं किया, तो हो सकता है वहाँ ही फ्रॉड रह गया. तो मटेरियलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन. तो दिस 5-6 इनहेरेंट लिमिटेशंस आर देयर. तो जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हो, ये 5-6 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, बैकग्राउंड माइंड में. नंबर 1, इट इज सैम्पलिंग, इट इज टेस्ट चेकिंग, टेस्ट नेचर. नंबर 2 would be it is evidence, not concluding evidence. It is a persuasive. Majority evidences are persuasive in nature. Number 3, collusion of internal control system. Collusion होता, साथ में मिलकर फ्रॉड होता, तो भी ऑडिटर मार खा जाएगा वो केस में. Number 4, professional skepticism, mean reasonable care. Auditor is responsible for reasonable care, and that is why legal authorities cannot expect the 100% depth verification from the auditor. And number 4, it is a materiality. Auditor, the focus is on materiality. तो डेफिनेट तो रीजनेबल केयर कवर करने के लिए मैं डेफिनेटली मटेरियल आइटम पे ही फोकस करूँगा. या तो हो सकता है जो माइनर आइटम है, जो इमटेरियल आइटम है, उसके अंदर कोई फ्रॉड रह जाए. यस. तो दीज आर दी
inherent limitations of the auditing. Yes, now you can very well write it down even in the examination hall. Now last is the today's third question is it is audit engagement. इसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑडिट की प्रोसेस याद करो. इसमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट, सेकंड थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस यू विल हैव टू गेट, थर्ड ऑडिट एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड इन राइटिंग बिटवीन ऑडिटर एंड कंपनी. दोनों के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन राइटिंग. दैट इज कॉल्ड ऑडिट एंगेजमेंट. यस, all terms will be considered as audit engagement. Audit engagement. Yes. Now, in this case, in case of the audit engagement, what areas we will cover, what items, what terms and conditions we should cover in this audit engagement letter. So, number one, what is an objective of the audit? What will be the scope of the audit? उसका मेन ऑब्जेक्टिव लिखो. ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू गिव द ओपिनियन, इट इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव. स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो. नंबर टू, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट. स्कोप नॉर्मली इट इज डिसाइडेड बाय द लॉ. इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट आई क्लैरिफाई, स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द लॉ. तो मिनिमम उतना तो स्कोप होना ही चाहिए. ऑडिट एंगेजमेंट में यू कैनॉट कट डाउन द स्कोप ऑफ ऑडिट. जो लॉ में लिखा है उससे ज़्यादा हो सकता है स्कोप, उससे कम नहीं हो सकता. तो स्कोप भी क्लैरिफाई कर लो. नंबर थ्री, what will be the management responsibility and what will be the auditor's responsibility? What will be the management responsibility? So the management responsibility would be to prepare the financial statement, to provide all facilities to the auditor, to provide all cooperation to the auditors, to give the answer of all inquiries, all questions of the auditor. This will be the management responsibility. To set the best internal control system within the organization. Best internal control system within the organization. It is the responsibility of the top management. ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, वो लिख लो. इनहेरेंट लिमिटेशन भी इसमें लिख लो ऑडिट एंगेजमेंट में. तो कल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको क्लेम ना करे, कोई शेयर होल्डर्स आपको क्लेम ना करे क्या कि ऑडिट की भाई ये 5-6 लिमिटेशन है ही है. आप ऑडिट करवाते हो तो भी ये 5-6 प्रॉब्लम तो है ही है. क्लियर कट कर दो. तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में इनहेरेंट लिमिटेशन भी मेंशन कर दो. बाद में ऑडिट फीस भी क्लियर कट लिख लो. फीस क्या होगा, कौन से बेसिस पे फीस डिराइव हुआ है, फिर हम इनवॉइसिंग कब करेंगे, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ इनवॉइसिंग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस सेपरेटली चार्ज करना है या नहीं करना है. यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वहाँ का होटल एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर, ये सब सेपरेटली चार्ज करना है ओवर एंड अबव ऑडिट फी, यस और नो. वो सब कुछ आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख देना है. यस, हाँ. तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ माई ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. एक दो चीज़ और भी लिख सकते हैं. ये क्या, जहाँ जहाँ मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से एक्सपर्ट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स चाहिए मुझे ये अगर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविज़न करना है. तो इसमें जो मेरा लॉयर जो ये केस फाइट कर रहा है कोर्ट में, उसका सर्टिफिकेट मुझे चाहिए कि कितनी इसमें लायबिलिटी हो सकती है, कितने परसेंटेजेस है, विनिंग का कितने चांसेस है. उसके बेसिस पे आई विल डिसाइड कि वेदर प्रोविज़न टू बी मेड, यस और नो. तो जो एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें लिख देना चाहिए. तो कल उठ के कोई वो भी डिस्टर्बेंस ना आए. एंड लास्ट में डिलीवरेबल मीन्स आपका ऑडिट रिपोर्ट. आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा एंड आप क्या डिलीवर करोगे, दैट शुड ऑल्सो बी clarified in the audit engagement letter. So these 6-7 items to be clarified in audit engagement letters and will be signed by both the parties. It is a company and it is the auditor. तो क्या है, जितना टर्म्स कंडीशन क्लियर है तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने का, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने की कोई क्लैरिटी ना हो, कोई चांसेस ना हो. तो ऑडिटर एंड कंपनी के बीच में फ्यूचर में पूरा ऑडिट असाइनमेंट ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर कर लो एंड दैट विल बी क्लैरिफाइड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. Yes? Yeah. Now, the next question we will cover in the next session. Chalo, goodbye, good day. Goodbye, good day.